The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. But I can see clearly that there is a problem, right? And that problem requires a solution. It's a global problem, and more than a global problem, it's a problem for India, it's a problem for Europe, and it's a problem for the United States. And frankly, it's a problem for all of you in this room, because you're going to have to deal with the problem. And the problem is that we have a planet today where the bulk of production, the bulk of manufacturing, the bulk of value addition is being done in China. And I'm not going to comment on whether that's a good thing or a bad thing. The Chinese have successfully competed against us and achieved it, right? There is a problem with, in my view, there is a problem with the way they do it. They produce, they're very good at producing, they produce the phone in my pocket, they produce the camera, but they do it in non-democratic, coercive conditions. And the problem is that for us, we need to think about production in a democratic environment, production in a non-coercive environment, and we need to be able to compete with them. Meaning, they don't need to give their population political freedom. They can just give them economic freedom and then become the center of production globally. We have to produce and compete with them, and we have to give our people political freedom and economic freedom. So that is really the challenge. I don't see it as, a confrontation with China. China has placed on the table a way of working, a way of production. And I think it is important for the United States, for India, for Europe, to place an alternative system, an alternative method on the table. And I think we owe it to, certainly we owe it to our population, and I think the French and the Europeans owe it to their population, because we are not going to be able to, manage our countries. We're not going to be able to give students like you jobs without doing that. So to me, it's an opportunity to say, can we produce in democratic structures, within democratic frameworks? मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना जो आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं. लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है. बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है. हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं. नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं. आज तो मुझे ताजुब लगा कि किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और सदन के अंदर जो हुआ उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताना भी उचित नहीं समझता हूं. लेकिन हमने जो चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया.
उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब एक स्टेटमेंट दिए 1 पेज की, और स्टेटमेंट देकर सीधा चले गए। अरे हम बोले भाई चर्चा करो, हमको बताओ, देश के जनता को भी बताओ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है, अपनी वहां के जवानों के बारे में उनकी स्थिति क्या है बताइए। ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है। हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो? आप क्यों छुपा रहे हो? तो यही पूछ रहे थे, लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के खास बुलेटिन जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, या उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। ये एक मानहानि का मुकदमा था, और इसमें राहुल गांधी पर आर्मी के एक पूर्व अफसर ने इस बात के लिए मानहानि का मुकदमा किया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना ने भारत की सीमा में घुसकर जमीन पे कब्जा कर रखा है, और गलवान में उसने जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने घुसकर भारतीय जवानों को 20 जवानों को मारने का प्रयास किया था। ये बात सब जाहिर था। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसकर भारत के वीर सिपाहियों की हत्या कर देते हैं, और सरकार का कोई भी उस पर एक्शन नहीं होता है। सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर बैठकर ये झूठ बोला कि ना तो भारतीय सीमा में कोई घुसा है, ना घुसने पाया है, और ना घुसेगा। मतलब वो पूरी तरीके से नकार गए कि भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ है। जबकि असलियत ये है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कब्जा कर रखा है, और वहाँ पर अपने गांव भी बसा रखे हैं। इस बात के लिए प्रधानमंत्री ने सच बताने की बजाय उन्होंने ये झूठ बोला और कहा कि चीन का कोई भी हस्तक्षेप हमारे देश में नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये अपनी बात को जनता के सामने रखा कि किस तरीके से चीन का अतिक्रमण हमारे देश की सीमा के अंदर होता जा रहा है, इस पर सरकार ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। लेकिन चर्चा ये है कि सरकार और पार्टी के इशारे पर एक पूर्व सेना का अधिकारी जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा करता है, उससे साफ जाहिर होता है कि असलियत दिखाने के बजाय लोगों को उकसा दो, और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को किसी ना किसी तरीके से उनको घेरने का प्रयास किया जाता है। राहुल गांधी पर लगभग 1.5-2 दर्जन मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। एक मुकदमे को लेकर जिस तरीके से पूर्णेंदु मोदी ने गुजरात का जो विधायक था, पूर्व विधायक और मंत्री था, उसने राहुल गांधी के ऊपर 2018 में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उसने मानहानि का मुकदमा किया, और उस मानहानि के मुकदमे को लेकर जिस तरीके से 2023 के लास्ट में गुजरात की सभी अदालतों ने राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में जिस तरीके से अधिकतम सज़ा 2 साल रखी और उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे थे, उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गुजरात के हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट यानी सभी
जजों को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने ऐसा क्या देखा जो कि आपको लगा कि इनको मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाए। वो से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली। काफी जमीन। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे है। मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय बात तो करते हैं आत्मनिर्भर की, पर जिस प्रकार का उन्होंने आर्थिक स्थिति बनाई है, अब भारत पिछले 10 वर्ष में आत्मनिर्भर नहीं और चाइना निर्भर हो गया है। अब अभी अरविंद सावंत जी ने कहा कि चाइना से और वीजास की मांग मंत्रालय कर रही है और ये उन मंत्रालय को ये सुझाव भी दे रहे हैं कि हमको और वीजास चाहिए। कुछ दिन पहले आपका प्रश्न क्या? मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ दिन पहले यही लिखा कि चाइना से हमको और एफडीआई हमको लेना चाहिए। तो जहां पे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना के साथ सख्ती से पेश आएंगे, वहीं पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हमको चाइना से और निवेश चाहिए, चाइना से और वीजा चाहिए। तो देश के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री 2 अलग बातें क्यों करते हैं? डबल इंजन की बात। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि किस तरीके से अदालतों में बैठकर कुछ खास जज सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ऐसा कई नमूने सामने पेश हैं जिसको देखकर लगता है कि किस तरीके से न्याय व्यवस्था में भी राजनीति अपनी पैठ बनाने में सफल रही है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि रंजन गोगोई जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने किस तरीके से सरकार के फेवर में कई आदेश, कई फैसले सुनाए। जैसे कि राफेल के केस में उन्होंने कांग्रेस की आवाज़ को, कांग्रेस के खिलाफ में जाकर उनके जिस तरीके से अपना वर्डिक्ट रखा और कांग्रेस की सही बातों को भी सुनने से इनकार कर दिया। ऐसा ही कुछ मामला अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद में जिस तरीके से रंजन गोगोई ने अपनी बातें रखी, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जिस तरीके से रंजन गोगोई ने सरकार का साथ दिया, उससे साफ लग रहा था कि रंजन गोगोई अपने कर्तव्यों के प्रति निष्पक्ष नहीं रहे। और दिलचस्प बात यह है कि उनके रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने और उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। इससे लोगों के दिमाग में और भी ज़्यादा समझ में आता है किस तरीके से राजनीति का असर न्याय व्यवस्था पर देखा जा रहा है। रंजन गोगोई पर एक ये भी आरोप था कि उन्होंने अपने अधीनस्थ एक महिला के साथ में उनका यौन शोषण किया। दिलचस्प बात यह है, जिस आदमी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, उसी की निगरानी में उसी पीड़िता को सुनवाई करनी थी। They are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई, इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक